स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूल सेल और कोरोजन पढ़ा था, जिसमें रेमेडीज टू कोरोजन and important points of corrosion, all things we have already studied. Okay. Today we will start a new topic which is called electrolytic cell, which is known as electrolytic cell. So first of all, electrolytic cell और electrochemical cell, इसमें डिफरेंस क्या है वो हमें समझना चाहिए. तो let us see what is electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सिंपल यूज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. वहां पे क्या था, केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो. क्या लिखेंगे? द apparatus which convert the apparatus which converts electrical energy to chemical energy is called electrolytic cell. उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है. The apparatus which converts electrical energy to chemical energy is known as electrolytic cell. Students, electrolytic cell, उसमें generally if you are passing electricity which is used for chemical reaction. ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन की जाती है. ओके, दिस इज द मेन वर्क ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. So the apparatus which converts electrical energy to chemical energy is called electrolytic cell. Okay, by passing the electricity, some non-spontaneous chemical reactions are carried out. Okay. So let us see one simple example of electrolytic cell. Simple सा example लेते हैं electrolytic cell का. Take a vessel. Okay. Take a vessel. In this vessel, generally blue colored copper sulfate solution is taken. Okay. In the vessel, blue colored copper sulfate solution is taken and impure copper is taken as anode. You can see here impure copper electrode is taken as anode and pure copper electrode is taken as cathode. Impure copper is taken as anode and pure copper is taken as cathode, and both of the electrodes are connected to suitable battery. Okay, so here I can write this is impure copper, this is impure copper, okay, and this is pure copper. ओके, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसे एनोड कहेंगे, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कहेंगे कैथोड. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से यह ऑपोजिट होगा. बैटरी का वहां पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कैथोड था, पॉजिटिव. यहाँ देखो आप, यहाँ पॉजिटिव एनोड है, वहां नेगेटिव एनोड था. वहां कैथोड पॉजिटिव था, यहाँ कैथोड नेगेटिव है, क्योंकि प्रिंसिपल डिफरेंट है ना. यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल है, वहां पे क्या था, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके,
So let us see the mechanism. Actually क्या होगा, if we take impure copper and pure copper at respectively anode and cathode, so which reaction occurs? So if we pass proper current, अगर आप proper current pass करोगे तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमने लिया था कॉपर सल्फेट का. It occupies Cu2 plus ion and SO4 2 minus ion. So what happens here? कैथोड पे सॉल्यूशन का Cu2 plus ion 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है Cu solid. So this Cu2 plus ion gets reduced and collected at cathode, deposited at cathode in pure form. However, सामने एनोड पे क्या होगा? तो बच्चों एनोड पे इम्प्योर कॉपर था, तो वो इम्प्योर कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन and forms Cu2 plus ion acquires plus 2 electron. तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इम्प्योर और यहाँ पे आएगा प्योर. तो आप देख सकते हो एनोड पे प्रोड्यूस हुआ Cu2 प्लस आयन और वो कैथोड पे डिपोजिट हो गया. एनोड से प्रोड्यूस हुआ Cu2 प्लस आयन कैथोड पे डिपोजिट हो गया. धीरे 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 जितना भी कॉपर प्योर फॉर्म में एनोड पर था वो डिसॉल्व होता जाता है और कैथोड पे डिपोजिट होता जाएगा. तो चलो बच्चों, दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हुए? कैंसल. जो Cu2 प्लस आया वो ही चला गया. तो सेल रिएक्शन लिखें तो हम लिख सकते हैं कॉपर सॉलिड इम्प्योर जो एनोड पर था वो बन गया कॉपर सॉलिड प्योर. ओके, so cell reaction will be copper solid impure becomes copper solid pure. So this is construction of simple electrolytic cell. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के यूजेस में हम पहला यूज लिखेंगे, इट इज यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन. ओके, इट इज यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर. ओके, कॉपर के प्योरिफिकेशन में बहुत यूजफुल होता है. अंडरस्टूड? So this is first use. It is also useful for purification of sodium metal, मैग्नीशियम मेटल, एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल का प्योरिफिकेशन करना हो वो यूजफुल होता है. नॉट ओनली दिस, इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेटल लाइक NaCl मोल्टन में से सोडियम मेटल, मैग्नीशियम क्लोराइड मोल्टन में से मैग्नीशियम, और क्रायोलाइट जैसी एल्यूमिनियम की ओर में से एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए यूजफुल होता है. So it is also useful for production of sodium, magnesium, aluminium, नामोगली ऐसी मेटल के प्रोडक्शन में भी ये इलेक्ट्रोलिसिस यूजफुल होता है. So the apparatus which converts chemical energy, electrical energy to chemical energy is known as electrolytic cell. If we are passing electricity, so non-spontaneous chemical reaction can be occur. Now arrangement is like this. Reactions and uses of electrolysis we have discussed. Okay. Now next question according to textbook is that explain Faraday's. Okay, explain Faraday's laws of electrolysis. Okay, explain Faraday's laws of electrolysis. माइकल फेराडे ने दिए हुए इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ को एक्सप्लेन कीजिए. तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स, 1833 से 1834 इन सालों में, मतलब in this AD, scientist Michael Faraday has done so many experiments. Okay, and after observing this so many experiments, Michael Faraday has given different two laws of electrolysis. Different two laws of electrolysis. Electrolysis के दो laws दिए थे.
okay, which are quantitative relation between charge and mass. So let us see laws of electrolysis. Okay, सबसे पहला लॉ बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फेराडे. The amount of product, the amount of product, the amount of product obtained at electrode, the amount of product obtained at any electrode during electrolysis, okay, by a current, during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity, passed through the electrolyte, okay. तो बहुत सिंपल सी बात कही है. The amount of product obtained at electrode, different electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. बराबर. सपोज हम वेट प्रोड्यूस होता है उसे W करें, एनोड या कैथोड पे जितना भी वेट मिलता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So W is directly proportional to Q. This is first law of Michael Faraday. So what is the law? Very simple. The amount of product obtained at electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. जितना ज्यादा करंट पास करोगे, Q पास करोगे, उतना ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. नाउ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिया है, उसको समझाने के लिए मुझे एक डायग्राम देना होगा. ओके, सपोज मेरे पास एक वेसल है. इन दिस वेसल आई एम टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन NaCl. इन सेकंड वेसल I am taking a solution of molten magnesium chloride. Okay, molten magnesium chloride. In third one, I am taking a solution of molten aluminium chloride, मतलब AlCl3. सभी लिक्विड फेज में है, पानी बिल्कुल नहीं है, मेल्ट किए हुए सॉल्ट्स हैं. अच्छा, अगर मैं इसमें सीरियल कॉम्बिनेशन करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे है बच्चों एनोड. तो मैंने सभी के एनोड एक दूसरे से सीरीज में ज्वाइन कर लिए. दिस इज कॉल्ड एनोड. ओके, चलो नाउ इट इज कनेक्टेड टू बैटरी. इट इज कनेक्टेड टू बैटरी एंड ऑन अदर हैंड वी आर टेकिंग कैथोड. दूसरी जगह पे हम ले रहे हैं बच्चों कैथोड. So we have taken a serial combination of 3 electrolytic cells. फर्स्ट सेल में था NaCl, दूसरे में MgCl2, तीसरे में AlCl3. And if we are passing same current and same quantity of electricity, so what happens here? बच्चों यहाँ पे मैं फर्स्ट वेसल उसकी बात कर रहा हूँ. तो कैथोड पे फर्स्ट वेसल की रिएक्शन क्या होगी आप देख सकते हो. Na plus gains electron and gives sodium solid. चलो सेकंड सेल में मैग्नीशियम, उसकी रिएक्शन क्या होगी आप जानते हो बच्चों. मैग्नीशियम का चार्ज +2 होता है, तो Mg2 plus +2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Mg सॉलिड. ओके, और थर्ड सेल में एल्यूमिनियम की रिएक्शन होगी. एल्यूमिनियम 3 plus gains 3 इलेक्ट्रॉन एंड गिव्स एल्यूमिनियम सॉलिड.
आपको बता दूं सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम होती है, बराबर। क्यू कैसा होता है? सेम। तो अगर मुझे 1 मोल सोडियम चाहिए, बराबर, 1 मोल सोडियम चाहिए, तो फिर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा। 1 मोल मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है? सेम। तो हम एक काम करेंगे, तीनों में से 1 इलेक्ट्रॉन पास करें। तीनों में से अगर तीनों में से 1 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, लाइक दिस। चलो, पहले में तो 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो लिखेंगे Na प्लस इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Na सॉलिड। दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करें तो Mg2 प्लस gives electron and forms half mole of magnesium solid। अब देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3, तो 3 से डिवाइड करो। 1/3 एल्यूमिनियम 3 प्लस gains electron and forms 1/3 mole of aluminium solid। तो अगर मैं सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, इफ आई एम पासिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगी। कैसे मिलेगी? तो आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ सोडियम मिला, हाफ मोल ऑफ क्या मिला? मैग्नीशियम, एंड 1/3 मोल ऑफ क्या मिला? एल्यूमिनियम। इसका मतलब ये हुआ कि सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बावजूद आपको सभी का डिफरेंट मोल मिला। ओके, चलो, 1 मोल सोडियम का मास होता है बच्चों इक्विवेलेंट मास जितना। इक्विवेलेंट मास, उसका फॉर्मूला है एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। एटॉमिक मास अपॉन चार्ज। तो चलो, सोडियम का एटॉमिक मास मिला 1 मोल, तो एटॉमिक मास 23 डिवाइड बाय, चलो सोडियम का चार्ज क्या है? +1, तो 23 डिवाइड बाय 1, तो 23 ग्राम आपको क्या मिला? सोडियम। मैग्नीशियम, उसका इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है, तो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24, बराबर, 12 एटॉमिक नंबर, 24 एटॉमिक मास, डिवाइड बाय 2 करोगे तो बच्चों 12 ग्राम जितना मैग्नीशियम मिला। और एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है 27, उसका चार्ज 3 है, तो 3 से डिवाइड करो तो बच्चों 9 ग्राम जितना एल्यूमिनियम मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है, इफ यू आर पासिंग सेम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज सब कुछ सेम होगा, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रोडक्ट कैसी मिल रही है? डिफरेंट। आपको 23 ग्राम सोडियम मिला, 12 ग्राम मैग्नीशियम और 9 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मास। ओके, weight is directly proportional to their equivalent mass। ओके, अगर आप सब में 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो जो मास मिलता है उसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं। तो अब सेकंड लॉ आपको समझ में आएगा। सेकंड लॉ ये कहता है कि इफ वी टेक डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन and if we pass same charge of electricity or same current through it, so the mass of product obtained at different electrode is directly proportional to their equivalent weight। It is directly proportional to their equivalent weight। It is second law of Michael Faraday। तो लॉ कुछ ऐसा है, the amount of different substance liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weight। their chemical equivalent weight। और equivalent weight का फॉर्मूला याद रखिए, क्या आएगा? एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपॉन इसका चार्ज, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एटम अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन। जैसे Na प्लस था तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, Mg2 प्लस था 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एल्यूमिनियम 3 प्लस था 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो इस पर से, इस फॉर्मूला पर से आप सेंटेंस बना लो। क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू their मतलब प्रोडक्ट के their chemical equivalent weight. Okay, so this is second law of thermodynamics, माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे का ये सेकेंड लॉ था बच्चों। इसके साथ साथ आपको बता दूं, जब माइकल फेराडे ने एक्सपेरिमेंट ये किया था तब उनके पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट नहीं था, उनके पास कांस्टेंट करंट का सोर्स नहीं था। बराबर, जैसे आपके पास एमीटर होता है या फिर कोई भी बैटरी होती है, तो आप लोग अभी ऐसा कर सकते हो, चलो 2 एम्पियर चाहिए तो सीधा स्विच पार दो, एडजस्ट कर लो, 2 एम्पियर मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे कांस्टेंट करंट सोर्स नहीं था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर, ओके, गोल्ड और सिल्वर जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कॉपर भी ले सकते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करके सब एक्सपेरिमेंट किए थे। और उन सेल को उस टाइम पे कहा जाता था कोलोमीटर। क्या कहा जाता था? कोलोमीटर। ओके, सो एट दैट टाइम माइकल फेराडे यूज्ड कोलोमीटर। ओके, कोलोमीटर यूज करके वो ये सब एक्सपेरिमेंट किया करते थे। So there were no constant current source available during Faraday's time. The general practice was to put coulometer, a standard electrolytic cell, for determining the quantity of electricity passed from the amount of metal. तो उस टाइम पे कोलोमीटर नाम का एक एपरेटस यूज करते थे, जो उस टाइम पे था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। ओके, उस टाइम पे था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, उसे यूज किया जाता था। बराबर, समझ रहे हो? तो ये बात है माइकल फेराडे की। लेकिन उस टाइम पे भी माइकल फेराडे ने एक फॉर्मूला दिया था कि Q इज इक्वल टू आई टी, Q is equal to IT, where Q is equal to charge or quantity of electricity, I is a current, okay, which is in ampere, and time t it is equal to second. So charge pass is equal to current into time. This is the formula of current. Okay, Q is equal to IT फॉर्मूला उन्होंने दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज की, दे हैव डिफाइंड 1 फेराडे। उन्होंने 1 फेराडे की डेफिनेशन दी। उसकी डेफिनेशन है द चार्ज ऑक्यूपाई बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is called 1 Farad. Okay, the charge occupied by 1 mole of electron is known as 1 Farad. The charge occupied by 1 mole of electron is known as 1 Farad. Okay, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसे 1 फैराडे कहा जाता है। तो चलो मैं डिसाइड करता हूं, यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ आएगा बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल? 6.022 into 10 raised to 23. This is 1 mole. Okay, what is charge of electron? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होगा ना, 1.6022 या 21 into 10 raised to -19 कूलम। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट आंसर आता है 96487 कूलम। तो दिस इज वैल्यू ऑफ 1 फेराडे। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑक्यूपाई बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। बच्चों 1 मोल को क्या बोलते हैं? एवोगेड्रो नंबर। तो उसकी वैल्यू रखें, चार्ज की वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें
इतना ही नहीं, न्यूमेरिकल्स में हम कभी कभार 96500 कूलम भी ले सकते हैं फॉर इजी कैलकुलेशन। ओके, so the quantity of electricity occupied by 1 mole of electron or charge occupied by 1 mole of electron is known as, क्या कहेंगे उसको, 1 फैराडे। ओके, तो चलो बच्चों, ये है माइकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसे इलेक्ट्रोलिसिस का माइकल फैराडे रूल कहते हैं। कभी कभार कंपैरिजन के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। चलो मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेफिनेशन देता हूं। व्हाट इज इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल का इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं? फॉर्मूला तो आपने देख लिया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास बाय चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज फॉर रिडक्शन। लेकिन डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं द वेट ऑफ, डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं द वेट ऑफ मेटल, द वेट ऑफ मेटल produced by 1 Faraday electric charge is known as equivalent weight of metal। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल का डेफिनेशन है द वेट ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड बाय 1 Faraday इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। जैसे आगे मैंने आपको समझाया कि हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल सोडियम मिला, मतलब कितना मिला, 23 ग्राम। तो दिस इज इक्विवेलेंट मास। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से आधा मोल मैग्नीशियम मिला, मतलब 12 ग्राम क्या मिला, मैग्नीशियम, वो है इक्विवेलेंट मास। 1 मोल एल्यूमिनियम से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1/3 मोल एल्यूमिनियम मिला, मतलब 9 ग्राम एल्यूमिनियम, दैट इज इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास का मतलब है द अमाउंट ऑफ मेटल लिबरेटेड एट कैथोड व्हेन वी आर पासिंग 1 Faraday electric charge through the electrolytic cell। Okay, so this is Michael Faraday law of electrolysis। Okay,